Good morning, my dear students. Let us welcome this beautiful day with a beautiful smile. And let us all pray to God that all things become back to normal. So, join your hands and let us pray to God. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Children, today we are going to read a very interesting chapter, the story of Magna Carta, which is given in your book at page number 70 as lesson number 12. Children, Magna Carta is a document or a treaty which is signed by the king and his subjects. Subjects यानी जो राजा की प्रजा है, उनके बीच में और राजा के बीच में एक समझौता हुआ, एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ कि राजा उन रूल्स को फॉलो करेगा जो उसमें लिखे हुए हैं, उस ट्रीटी में लिखे हुए हैं. सो मैग्ना कार्टा वॉज सच अ ट्रीटी, जिसमें ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए थे कि जिसको राजा भी फॉलो करना था. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रजा यानी जो सब्जेक्ट्स हैं वो फॉलो करेंगे, बल्कि राजा भी उसको फॉलो करेंगे. चिल्ड्रन, बिफोर रीडिंग द चैप्टर, हैव यू हर्ड द स्टोरीज और रेड अबाउट द किंग्स फ्रॉम हिस्ट्री? आपने पुरानी स्टोरी आपने सुनी होंगी राजाओं की, महाराजाओं की. आपको कुछ नाम याद हैं उनके? जैसे महाराणा प्रताप, सम्राट अशोक, अकबर. आपने इनकी स्टोरी सुनी है ना? तो बेटा ऐसे कुछ नाम आप यहाँ पर जिन राजाओं की आपने बहुत स्टोरी सुनी है उनके यू विल राइट अबाउट अ फ्यू नेम्स ओवर हेयर. हाँ जी चिल्ड्रन, केरनी तिवारी इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, द स्टोरी ऑफ मैग्ना कार्टा. But before reading the chapter, let us see what new words we are going to learn. The first word is defend. D-E-F-E-N-D. Defend means to protect from danger. यानी किसी खतरे से बचाना. That is called defend. Second word is impose. I-M-P-O-S-E. Impose means to set something to be obeyed. कुछ ऐसा सेट करना कि लोग आपकी बात को माने. दैट इज कॉल्ड इम्पोज, यानी जबरदस्ती किसी के ऊपर कुछ रूल्स सेट करना या किसी को कुछ जबरदस्ती कहना कि वो आपका कहना माने. दैट इज टू इम्पोज. द थर्ड वर्ड इज ट्रीटी. T-R-E-A-T-Y. ट्रीटी मीन्स फॉर्मल एग्रीमेंट, एक फॉर्मल साइन किया हुआ एग्रीमेंट. दैट इज कॉल्ड ट्रीटी. Miserable, M-I-S-E-R-A-B-L-E,
BA मिजरेबल यानी बैडली, बहुत बुरी तरह से, किसी की बहुत बुरी कंडीशन होना या बहुत बुरी तरह से ट्रीट होना, दैट इज कॉल्ड मिजरेबल. So children, you will write these new words and their meaning in your English notebook. Children, in this chapter we are going to mark articles. We have got 3 articles in English language: a, an, the. A and an are indefinite articles. A is used in front of the word which is singular and common noun and which has consonant sound. For example, a girl, a pencil. With a girl, G has the consonant sound. Pencil, P has a consonant sound. Children, article an is used in front of the nouns which are singular and common but has vowel sound. For example, an umbrella. Umbrella has vowel sound. An orange. Orange has vowel sound of O. The is a definite article which is used for particular things or where we use superlative degree. For we also use the in the front of the names of the rivers, oceans, heavenly bodies like the sun, the moon, newspapers like the Tribune, etc. For example, the Nile is the longest river. Here beta, Nile is the name of a river and longest is the superlative degree. So here we are using the. Now let us read the chapter. A very long time ago, in England, there ruled a king named Richard, the Lionheart. बेटा, बहुत समय पहले की बात है. इंग्लैंड में, इंग्लैंड एक कंट्री है, वहाँ पर एक राजा रूल करते थे जिनका नाम था रिचर्ड, द लायनहार्ट. यानी उनका जो दिल था वो शेर की तरह से था. बहुत ब्रेव थे वो, बहुत स्ट्रॉन्ग थे. Richard was a brave king and a great leader, but he spent very little time in England and chose instead to fight wars in the Middle East and defend his lands in France against invaders. तो रिचर्ड एक बहुत ही ब्रेव यानी बहादुर राजा थे और एक अ ग्रेट लीडर और एक बहुत महान लीडर थे. बट वो बहुत कम टाइम इंग्लैंड में स्पेंड करते थे और ज़्यादातर वो क्या करते थे, वो ज़्यादातर लड़ाइयाँ, वॉर्स. ये देखिए यहाँ पे बेटा वर्ड है वॉर. वॉर्स यानी लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे. कहाँ पर? मिडल ईस्ट. जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ते रहते थे और अपनी लैंड को, जो फ्रांस में उनका लैंड था, उनका राज्य था, उसको बचाते रहते थे अगेंस्ट इन्वेडर्स. इन्वेडर्स कौन होते हैं? जो हमला करते हैं, जो आपके देश के ऊपर हमला करते हैं ज़बरदस्ती. उनको वो अपने फ्रांस को बचाते रहते थे ताकि कोई इन्वेडर आके यानी आक्रमणकारी आकर उनका लैंड वहाँ से छीन ना ले. यहाँ पर बेटा अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो. देखिए बेटा बहुत समय पहले की बात है. अ किंग, कोई भी किंग हो सकता है. द लायन हार्ट, पर्टिकुलर जो किंग है उसकी क्वालिटी है कि वो लायन हार्ट है, तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं द. अ ब्रेव किंग, अगेन एक बहादुर राजा. अ ग्रेट लीडर, एक महान लीडर. एंड द मिडल ईस्ट, पर्टिकुलर एरिया है तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं द. यू विल ऑल्सो मार्क दीज आर्टिकल्स. It soon became clear to his subjects in England that Richard was not at all interested in the well-being of his kingdom. तो जल्दी ही जो उसके सब्जेक्ट्स थे यानी जो राज्य के लोग थे, बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट्स का मतलब आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट्स यानी प्रजा, जहाँ पर राजा राज करते हैं, वहाँ के लोग जो वो सब्जेक्ट्स होते हैं किंग के. तो जो इंग्लैंड की प्रजा थी
उनको ये क्लियर हो गया कि रिचर्ड उनके वेलबींग में यानी उनकी देखभाल में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, अपने राज्य के बारे में उनकी कि वहाँ कुछ अच्छा करे, कुछ लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ करे, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो दे फेल्ट दैट ही रिगार्डेड इंग्लैंड एज अ सॉर्ट ऑफ पिगी बैंक टू पे फॉर ऑल हिज वॉर्स। तो उनको क्या महसूस होता था कि रिचर्ड जो है, किंग रिचर्ड, वो सिर्फ इंग्लैंड को एज अ पिगी बैंक यानी पैसे की, आप पिगी बैंक में बेटा अपने मनी कलेक्ट करते हो ना, और जब ज़रूरत होती है तो आप पिगी बैंक में से मनी निकाल के स्पेंड करते हो, ऐसे ही करते हो ना। तो लोगों को ये लगा, इंग्लैंड के लोगों को, कि जो राजा रिचर्ड हैं वो उनको एज अ पिगी बैंक यूज़ कर रहे हैं कि अपनी अब बेटा लड़ाई होती है तो बहुत सारा पैसा ज़रूरत पड़ता है, तो वो सिर्फ इंग्लैंड के लोगों से सिर्फ पैसे लेने के लिए आते हैं, अदरवाइज़ उनको इंग्लैंड के लोगों की वेलबींग के बारे में, उनकी देखभाल के बारे में बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है। बट दे ओबेड हिम एंड अलाउड हिम टू इम्पोज heavy taxes on their land because he was their king, all powerful, in the end a brave and strong leader। लेकिन वो फिर भी राजा रिचर्ड का कहना मानते थे और उनको अलाउ करते थे कि हाँ कोई बात नहीं, आप हम पे हैवी टैक्सेस लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्यों? ताकि क्योंकि राजा रिचर्ड जो थे, किंग रिचर्ड जो थे, वो बहुत पावरफुल, शक्तिशाली और ब्रेव राजा थे, स्ट्रॉन्ग लीडर थे, जिसके कारण कोई और दुश्मन उन पर अटैक नहीं करता था। बेटा अगर राजा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कोई भी दूसरा देश आकर आपके ऊपर अटैक करेगा, अपना हुक्म चलाएगा, तो वो ऐसा नहीं होने देते थे। तो इसलिए लोग सोचते थे कम से कम यहाँ पर हम सेफ हैं, अगर राजा हम पर हेवी टैक्सेस भी लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। बेटा जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की जो मेन इनकम होती है दैट इज़ थ्रू टैक्स। टैक्सेस हम पे इम्पोज करते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, रोड टैक्स लेती है ताकि रोड्स को प्रॉपर बना सके, इनकम टैक्स लेते हैं ताकि गवर्नमेंट के जो खर्चा है वो निकल सके, राइट। सो हियर बेटा द वेल बीइंग ऑफ हिज किंगडम, तो किंगडम की वेल बीइंग, यहाँ देखिए हमने आर्टिकल यूज़ किया है द, ठीक है, एंड again and a brave and strong leader, so you will underline these articles. When King Richard died in 1199, his brother John took over as the king and proved to be one of the most unpopular rulers of England। तो अचानक क्या हुआ, जो किंग रिचर्ड थे, he died in 1199 यानी 1199 में उनकी डेथ हो गई। अब बेटा अगर राजा की डेथ हो जाती है, पहले वोटिंग सिस्टम नहीं था कि अगर कोई लीडर की डेथ हो जाती है तो हम वोट करके दूसरे लीडर को इलेक्ट करें, बल्कि पहले क्या था कि अगर राजा की डेथ हो जाती है तो उसका ब्रदर या बेटा वही राजा बनते थे, ठीक है। तो उनका जो ब्रदर था जॉन, ही टुक ओवर एज द किंग, और तो वो राजा बन गए एंड प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर रूलर्स ऑफ इंग्लैंड। तो वो इंग्लैंड के मोस्ट अनपॉपुलर यानी जिनको जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो एक ऐसे राजा बने। द कंट्री सॉ डार्क टाइम्स ड्यूरिंग हिज रूल, ही वॉज नोन टू बी petty and cruel and was brutally unkind to his subjects। तो उनके राज्य के टाइम जो कंट्री यानी इंग्लैंड था, उन्होंने बहुत ही डार्क टाइम्स का मतलब बहुत ही बुरा समय देखा। क्यों देखा बुरा समय? क्योंकि जो किंग जॉन थे वो बहुत ही क्रूअल थे, यानी बिल्कुल अनकाइंड थे, यानी लोगों के ऊपर जरा भी दया नहीं करते थे, और अपने जो राज्य थे वहाँ पर बहुत सारा कुछ ऐसा गलत काम करते थे जिससे कि लोग बहुत परेशान होते थे। He would demand heavy taxes from his people and would kill or imprison anyone who disagreed with him। तो वो बहुत हेवी टैक्सेस डिमांड करते थे और जो लोग
वो डिमांड उनकी पूरी नहीं करते थे, यानी टैक्सेस नहीं पे करते थे, उनको या तो वो किल कर देते थे, मार देते थे, या इम्प्रिजन यानी जेल में डाल देते थे। यहाँ बेटा देखिए द किंग, अब हम रिपीट कर रहे हैं इसको, तो वो एक पर्टिकुलर किंग हो गए। एंड द कंट्री, हमें पता है अब कौन सी कंट्री है, जिस हम पहले इस कंट्री के बारे में बात कर चुके हैं, तो ये पर्टिकुलर नाउन्स हो गए हैं अब। तो देयर वी विल यूज द। If the nobility of England refused to pay his taxes, he would kick them out and take over their property and wealth. तो बेटा if the nobility of England, nobility यानी अगर वहाँ के मंत्री भी मना करते थे कि सर इतना हेवी टैक्स हम नहीं पे करेंगे, तो वो अपने कोर्ट से यानी अपने दरबार से उनको निकाल देते थे और उनकी सारी प्रॉपर्टी और जितना भी सोना चांदी होता था, वेल्थ यानी धन, वो सब उनका ले लेते थे। ऑल इन ऑल किंग जॉन थॉट ऑफ हिमसेल्फ टू बी अबव द लॉ। तो किंग जॉन अपने आप को लॉ से भी ऊपर मानते थे। When King John took over the reign of England, he also took over all the King Richard's battles in France. तो जब राजा जॉन ने इंग्लैंड के ऊपर राज्य की अपनी कमान संभाली, यानी कि जब वो राजा बने, तो अब ये नहीं कि उनको सिर्फ राज्य मिलेगा, तो उन्होंने जो किंग रिचर्ड की बैटल्स थी यानी जो लड़ाइयाँ थी वो भी उनके हिस्से आई। अब उनको वहाँ लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। बट बिकॉज जॉन वॉज नॉट एज गुड एज हिज ब्रदर, ही स्टार्टेड लूजिंग बैटल आफ्टर बैटल मिजरेबली। लेकिन जो किंग जॉन थे वो अपने ब्रदर रिचर्ड की तरह से एक अच्छे वॉरियर नहीं थे, तो वन आफ्टर द अदर वो एक एक करके सारी लड़ाइयाँ हारते रहे। और मिजरेबली का मतलब यानी बहुत बुरी तरीके से वो सारी लड़ाइयाँ हारते रहे। जब आप लड़ाई हारते हैं बेटा, तो आपके बहुत सारे सैनिक भी मर जाते हैं, आपका बहुत सारा धन भी ख़त्म हो जाता है, एंड यू आर इन लॉस। और उसके अलावा आपका बहुत सारी जो लैंड होती है वो भी आपको जीतने वाले को देनी होती है। हाँ जी बेटा, हेयर लॉ, कोई एक लॉ नहीं है, तो अबव द लॉ यानी जस्टिस से, रूल से ऊपर, द लॉ। अगेन द रेन यानी जो उनका समय पीरियड था, पीरियड ऑफ टाइम, जब रूल करने का पीरियड ऑफ टाइम था, तो दैट इज टाइम इज अ लॉन्ग थिंग, तो इसलिए हम वी विल यूज द रेन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है जी, यू विल अंडरलाइन दीज आर्टिकल्स। Children, we will read rest of the chapter in the next video lesson. Today, children, we are going to learn some new words starting with letter R. The first word is raise, R-A-G-E. Raise means गुस्सा. Rapid, R-A-P-I-D, rapid यानी बहुत fast. Third word is radiant, R-A-D-I-A-N-T. Radiant means shining. Fourth word is ruler, R-U-L-E-R, ruler यानी जो शासन करता है. The last word is rude, R-U-D-E, rude, जो बहुत गंदे तरीके से बात करता है, that is called rude. Children, your homework is that you will read lesson number 12 of your reader book and write new words with their meanings along with vocabulary words in your English notebook. Children, bye for now, but keep learning and smiling always.